Very good morning, everyone. So, today in this chapter, we are moving forward towards the importance of microbes in human health. As we were doing how the microorganisms act as our friends and how we get benefit from the microorganisms. ठीक है, we have in our last lecture we seen that microorganisms are used in food, like in curd and cheese formation. For curd, lactobacillus was there, है ना. चीज़ के लिए फंगस इज़ यूज्ड. And then in bakery products, we use yeast. Yeast is a type of fungus and it is used for fermentation. Fermentation means increase in the volume of dough on decomposing on that, on growing on that, the batter which was prepared, या dough which was prepared when we add the yeast. यीस्ट ऐड करने पे जो डो में डिकम्पोजिशन हुई, मीन्स उन्होंने यीस्ट ने शुगर को डिकम्पोज करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाई और साथ में अल्कोहल बनाया. अल्कोहल से एक स्पेसिफिक टेस्ट आया बेकरी प्रोडक्ट्स में. एंड देन कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगी, इट विल ट्रैप इन द डो के अंदर ट्रैप हो जाएगी, फंस जाएगी एंड इट विल इंक्रीज द वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगी. फाइन, दैट वाज नोन एज फर्मेंटेशन. और इसी फर्मेंटेशन से अल्कोहलिक बेवरेजेस भी हमने देखी. Then it was there that sewage treatment plants, effluent treatment plant were there. In effluent treatment plants, and now we are going to see the importance of microorganisms in our health. और इस हमारे हेल्थ से रिगार्डिंग तो हम इस टाइम पे बहुत ज़्यादा देख रहे हैं कि माइक्रो हेल्पफुल कैसे हैं और इवन हार्मफुल कैसे हैं. इस जो आज का लेक्चर है उसके बाद हम पढ़ेंगे हाउ दे आर हार्मफुल फॉर अस. ठीक है जी. सो फर्स्टली सी दिस, take out the page number 22 of your book and then we are going to read it. As I have got suggestion from the students that you like to read from the book, that's why I'm taking this from the book, but with the pictures regarding the topic. Fine. So have the pencil with you and underline what is being asked to do. Then firstly, many microorganisms present in alimentary canal of some animals. कुछ animals जैसे cows, उनके alimentary canal में microorganisms आते होते हैं and they help in digestion and absorption of food. So the bacteria present in our large intestine also, it helps in bowel movement. So ये आपको याद रखना है that how bacteria helps that are present in the alimentary canal. तो जो animals में present है तो they help in digestion and absorption of food also, but the bacteria which are present in the large intestine, they help in the bowel movement. Fine ji. Then we are coming on the next topic, that is antibiotics, and it is very important. So antibiotics वो medicines हैं that inhibit the growth of harmful microorganisms. ये microorganisms की growth को कम कर देती हैं. कैसे? by affecting their life process. उसका जो life process होता है बैक्टीरिया का, बीमारी फैलाने वाले microorganism का जो life process होता है उसको affect कर देती है, जिसकी वजह से ये बहुत सारी diseases ख़त्म हो जाती हैं. जैसे पेंसिलिन है. अब आपको ये बहुत इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट? सी, एक तो ये है एंटीबायोटिक्स की डेफिनेशन, दैट दीज आर द केमिकल्स दैट इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ दैट, ये सारी लाइन आपको करनी है, दैट इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ हार्मफुल माइक्रोऑर्गेनिज्म बाय अफेक्टिंग द लाइफ प्रोसेसेस. नाउ दिस एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल जो है ये अलग से भी पूछा जाता है. ये अलग से भी पूछा जाता है. कैसे पूछा जाता है?
that which was the first antibiotic and how it was obtained, then which microorganism is used to prepare that penicillin, that first antibiotic. सो ये सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं, तो आपको थोड़ा सा ये देखना है. सो दिस लाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. पेंसिलिन इज़ एन एंटीबायोटिक ऑब्टेन फ्रॉम अ फंगस. ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है. फंगस से बनती है. कौन सी? पेंसिलिन से ही बना, पेंसिलियम नोटेटम. पेंसिलियम नोटेटम. और आजकल जो स्पेशली ये ऐसे मौसम जब चेंज होता है तो बहुत सारी ऐसे डिजीज़ हो जाती हैं सभी को, तो उनके लिए जो एंटीबायोटिक्स यूज़ होती हैं वो स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, ये सारी जिनके भी जो स्पेशली माइसिन होता है, ये सारे के सारी एंटीबायोटिक्स होती हैं. फाइन. सो मीन्स अब ये देखो कि एंटीबायोटिक्स ऐसे केमिकल्स हैं एंड ये ऐसे केमिकल्स हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ख़त्म करते हैं. दूसरा, ये बनते किससे हैं? दे आर प्रोड्यूस बाय फंगस एंड बैक्टीरिया. मीन्स ये बनते भी उन्हीं से हैं जिससे हमें डिजीज़ कॉज हो रही है. फाइन. तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ही एक टाइप से बनते हैं, फंगस एंड बैक्टीरिया से बनते हैं एंटीबायोटिक्स. सो अब ये वाला जो पैराग्राफ है, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. ये बोर्ड एग्ज़ाम्स में भी बहुत बार आ चुका है. आई होप आपने ये चीज़ अंडरलाइन कर ली होगी. ये डेफिनेशन, ये एंटीबायोटिक्स की डेफिनेशन, देन इसका एग्जाम्पल आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हो अगर आपको घर की कोई मेडिसिन याद है डॉक्टर की दी हुई, या फिर ये लिखे हुए हैं. ठीक है जी. और ये एंटीबायोटिक्स बनते किससे हैं? फंगस एंड बैक्टीरिया से. फाइन. सो नाउ वी आर गोइंग ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, that is, see, antibiotics are extremely effective in treatment of various microbial infection or diseases, कौन सी? like tuberculosis and cholera. अब ये जो है, ये इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, why antibiotics should be taken only on the advice of a qualified doctor, and that too only in the prescribed dosage and for the prescribed duration. मीन्स एंटीबायोटिक्स को हम अपने आप नहीं ले सकते, डॉक्टर्स की एडवाइस पे ही लेना है, और जितनी डोज दी है, जितने टाइम पे दी है, खाने से पहले या खाने के बाद, वो भी बड़े ध्यान से देखना पड़ता है. एंड जितने 5 दिन का है तो 5 दिन लेनी पड़ेगी, 3 दिन का है तो 3 दिन लेनी पड़ेगी. क्यों लेनी पड़ेगी? सोचने वाली बात है. देखो क्या होता है, एक एंटीबायोटिक हमने खाई, उसने कुछ पॉपुलेशन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मार दी, तो ये अकॉर्डिंग टू दैट ये पता होता है मेडिसिन जो होती है इसी तरीके से सेट होती है कि जैसे 5 घंटे के लिए 6 घंटे के बाद खानी होती है नॉर्मली. ठीक है. तो अगर सुबह आपने खा ली एक मेडिसिन, 6 घंटे का गैप मिनिमम होना चाहिए. नॉर्मली डॉक्टर्स 10 आवर्स का गैप रखते हैं, एक सुबह और एक शाम. ठीक है, खाने के बाद. सो इतने में क्या होता है कि इतने आवर्स में कुछ पॉपुलेशन दोबारा ग्रो होने लगती है, या अगर हम इतने टाइम के अंदर हम खा लें तो और ज़्यादा उसकी पॉपुलेशन ख़त्म हो जाएगी. लेकिन अगर हमने एक सुबह मेडिसिन खाई और शाम को लेनी भूल गए तो जो डैमेज हुआ था माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को वो रिकवर हो जाएगा, वो दोबारा से मल्टीप्लाई हो जाएंगे उतने. तो मीन्स जो मेरा एंटीबायोटिक से फ़र्क पड़ना चाहिए था मेरे डिज़ीज़ को, वो फ़र्क नहीं पड़ेगा. क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि हमने उसको प्रॉपर डोसेज और प्रॉपर डिस्क्राइब ड्यूरेशन के साथ नहीं लिया है. ठीक है. सो ये चीज़ आपको इसके जो पॉइंट्स हैं वो क्या है? फर्स्टली, नॉट कंप्लीटिंग द प्रिस्क्राइब्ड कोर्स मे मेक देम इनइफेक्टिव टू बी यूज्ड इन फ्यूचर में उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के साथ के ऊपर स्पेशली ये दवाई काम नहीं करेगी. क्योंकि वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने वो मेडिसिन कुछ ली, कुछ मर गए, कुछ बच गए. अब जो बच गए वो तो उनको तो उसकी आदत हो गई है ना, दे गेट हैबिचुअल ऑफ दैट मेडिसिन,
अब वो जो हैबिचुअल हो गए, रेजिस्टेंट हो गए हैं, तो अब उसको उनको मारने के लिए तो उस डोज से ज़्यादा पावरफुल लेनी पड़ेगी मेडिसिन। दैट्स वाई अगर हम उसका प्रिस्क्राइब कोर्स पूरा नहीं करते हैं तो अगली बार हमारे ऊपर वो एंटीबायोटिक काम नहीं करेगी। एंड देन इफ़ दे आर टेकन व्हेन नॉट ओनली रियली रिक्वायर्ड, जब नहीं, अगर ज़रूरत ही नहीं है हमें मेडिसिन की और हमने उस टाइम पे ये मेडिसिन बिना मतलब ही खाए जा रहे हैं, बिना डॉक्टर से पूछे, देन इट विल किल यूज़फुल बैक्टीरिया इन आवर बॉडी, तो हमारा डाइजेशन इफ़ेक्ट होगा। ठीक है, सबसे पहली बात ये इनइफेक्टिव हो जाएगी। ठीक है जी, ineffective हो जाएगी for the use in future. Then number 2, that it will kill the useful bacteria in the body also. I hope that it is clear to you. So see, ये digestive tract है हमारा, ठीक है, इसके अंदर ये बैक्टीरियाज हैं, ये बॉवल मूवमेंट में हेल्प करते हैं। ठीक है, ये है देखो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल बैक्टीरिया, जो फ्रेंडली बैक्टीरिया वो है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। जब पेट ख़राब होता है तो स्पेशली दही दी जाती है बच्चे को खाने के लिए, तो वो इसीलिए होता है। ये याकूट, डाइजेशन के लिए याकूट खाया होगा आप लोगों ने, उसमें भी लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है। देन है बाइफाइडोबैक्टीरियम, ये भी आपके बॉवल मूवमेंट और स्पेशली डाइजेशन में हेल्प करता है। देन आता है हेलिकोबैक्टर पायलरी, ये अनफ्रेंडली बैक्टीरिया। ये हमारे ये ऐसे कीड़े होते हैं जो पेट में हों तो हमारा खाना खा जाते हैं, जिससे हमारी भूख अफेक्ट करती है, हमारा न्यूट्रिशन इफ़ेक्ट करता है, और ये सब मतलब हमें तंग करने वाले बैक्टीरियाज़ हैं जो टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं। These are also the bacteria which are present in the large intestine especially. Fine. So this is the penicillin tablet of 250 mg, and then ये वो फंगस है जिससे ये पेंसिलिन बनी। इस फंगस को बोलते हैं पेंसिलियम नोटेटम। दिस इज़ पेंसिलियम नोटेटम। इस पेंसिलियम नोटेटम से पेंसिलिन बनाई गई। इट इज़ अ टाइप ऑफ फंगस। ये देखो, ये फंगस है, इसको माइक्रोस्कोप में देखा तो ये इस तरीके का स्ट्रक्चर आया इसमें। ठीक है, ये मोल्ड्स की तरह से ही है इसकी, वेट। ठीक है जी, तो ये फंगस ये अंदर जाके ये क्या करेगी, ये जो फंगस है ये जब हम अंदर लेंगे तो हमारे अंदर जो टॉक्सिन्स प्रोड्यूस हुए, जो पैथोजेंस हैं या जो हार्मफुल बैक्टीरियाज हैं, फंगस है, तो उसको ये किल करेगी, मारेगी। और बट इसको अगेन प्रिस्क्राइब्ड डोसेज के साथ लेना है। फाइन। देन वी आर कमिंग ऑन एंटीबॉडीज़। एंटीबॉडीज़ ये आप कह सकते हो कि ये ना हमारी बॉडी के सोल्जर्स होते हैं, आर्मी ऑफ आवर बॉडी। So when microorganisms like bacteria and viruses enter our body का मतलब होता है इन्वेड करना, जैसे ये हम पे हमला करते हैं, then they are recognized by special kind of blood cell। ब्लड सेल्स के अंदर, ब्लड के अंदर कुछ स्पेशल सेल्स होते हैं, ठीक है, और वो उनको पहले रिकॉग्नाइज करते हैं, मीन्स पहचानते हैं ये कैसा आया, ये कैसी कोई फॉरेन बॉडी आ गई है। तो अगर वो बॉडी में पहले आई हुई होती है तो वो उसको पहचान जाता है और फटाफट उसके अगेंस्ट जो उसको मार सके, ऐसी पहले तो स्पेशल टी सेल्स क्रिएट करते हैं, एंटीबॉडीज़ क्रिएट करते हैं, और फिर उसको वो एक पूरी आर्मी फोर्स की तरह उसके ऊपर डालते हैं ताकि वो मर जाएं। ठीक है, और यही दीज सेल्स गेट स्टिमुलेटेड टू प्रोड्यूस, वो उनके अंदर ऐसा कुछ मतलब वो ऐसा कुछ बनाते हैं, मीन्सली ऐसे प्रोटीन्स क्रिएट करते हैं जो उसको पहचानते हैं, और पहचानने के बाद फिर वो इंफॉर्मेशन दैट्स थ्रू द mRNA, मैसेंजर RNA। ठीक है, सो चलो ये कुछ टर्म्स हैं जो हायर लेवल पे आपको जाके समझ में आएंगी। न्यूक्लियस क्रिएट करता है, सेल के अंदर का न्यूक्लियस होता है
वो आरएनए क्रिएट करता है, फिर वो मैसेज आगे राइबोसोम्स तक जाता है। आप लोगों ने कुछ ये टर्म्स पढ़ रखी हैं फर्स्ट चैप्टर में, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू। फिर वो आरएनए उस मैसेंजर के अकॉर्डिंग जो प्रोटीन चाहिए उसको मारने के लिए वो क्रिएट करता है, एंड क्रिएट करने के बाद फिर वो बहुत सारे एंटीबॉडीज़ क्रिएट करते हैं, एंड देन वो पूरी एक आर्मी फोर्स बन जाती है, एंड देन उसके ऊपर डाली जाती है। सो नॉर्मली एंटीबॉडीज़ का काम क्या है? एंटीबॉडीज़, सो यू हैव टू अंडरलाइन इट, antibodies identify and destroy the disease causing bacteria या organisms, ठीक है जी। एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द बॉडी, अब क्या हुआ कि एक बार जो बैक्टीरिया वायरस हमारी बॉडी में आ गया और हमने उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बना लिए ना, तो हमारी बॉडी के अंदर कुछ मेमोरी सेल्स भी होते हैं, वो उसको याद रखेंगे कि इसके लिए ये वाली आर्मी यूज़ करनी है, मेडिसिन यूज़ करनी है, एंटीबॉडी यूज़ करनी है। तो अगर तो इस टाइम पे इट गेट्स, अगर वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इफ़ द सेम माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर्स द बॉडी अगेन, इट गेट्स रिकॉग्नाइज्ड एंड डिस्ट्रॉयड मच फास्टर, और इसको हम इम्यूनिटी बोलते हैं। सो इम्यूनिटी की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो इम्यूनिटी की डेफिनेशन ये है जी, immunity is there for the natural ability of an organism to have an inbuilt mechanism, हमारे अंदर मैकेनिज़्म बनता रहता है, हमें पता भी नहीं चलता इस बारे में। और क्या मैकेनिज़्म बनता है? टू रेजिस्ट एंड डिस्ट्रॉय द इन्फेक्शन। जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म बाहर से मेरी बॉडी में आया, जिसने इन्फेक्शन कॉज किया, उसके अगेंस्ट जो उसके अगेंस्ट एक आर्मी फोर्स क्रिएट करना, कुछ ऐसे प्रोटीन्स और केमिकल्स प्रोड्यूस करना जो उसको डिस्ट्रॉय कर सकें, उस एबिलिटी को हम इम्यूनिटी बोलते हैं, ठीक है। तो वो हम जितना ज़्यादा अच्छा खाए पिएंगे, हमारे सेल्स जितने अच्छे होंगे और उनके अंदर जितनी अच्छी मेमोरी पावर होगी, तो हमारी इम्यूनिटी इतनी अच्छी होगी। दैट्स वाई सारे लगे रहते हैं काढ़ा पियो, अपना फ्रूट्स खाओ, विटामिन सी खाओ, ये इम्यूनिटी बिल्डिंग मटेरियल्स हैं। तभी आप लोगों को कहा जाता है कि ये मत खाओ, आजकल के टाइम में स्नैक्स बिल्कुल नहीं खाओ, बाहर का बिल्कुल नहीं खाओ, एंड डू ईट हेल्दी एंड जस्ट हेल्दी, फाइन। उसमें भी फ्रूट सबसे ज़्यादा, बिकॉज इम्यूनिटी के लिए विटामिन्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। देन ये देखो, ये एंटीबॉडीज़ क्रिएट हुई हैं, ये ऐसे वाई शेप में, टी शेप में होती हैं। अब जैसे ही ये वायरस आया, एंटर किया, कुछ सेल्स आए, उन्होंने इसको रिकॉग्नाइज़ किया, ये क्या है, इसका कुछ पार्ट अपने अंदर ले लिया। फिर इसने सिग्नल्स भेजे अलग अलग हमारे ब्लड के सेल्स को। फिर उन्होंने सेल जब अंदर गया तो उन्होंने न्यूक्लियस के पास भेजे, फिर उसने न्यूक्लियस ने आरएनए क्रिएट करके राइबोसोम्स को भेजा, फिर उन्होंने प्रोटीन्स क्रिएट किए, एंटीबॉडीज़ क्रिएट किए, फिर वो उनकी मिलियंस ऑफ कॉपीज़ बन गई, एंड मिलियंस ऑफ कॉपीज़ बनकर वो सारी अटैक की उस वायरस के ऊपर, है ना, और वो वायरस उसके बाद वो ख़त्म हो गया। बट दिस प्रोसेस टेक्स टाइम, दैट्स वाई हमें ठीक होने में, वायरल इन्फेक्शन से या किसी ऐसी फीवर वाली इन्फेक्शन से हमें ठीक होने में एटलीस्ट 5 डेज़ लग जाते हैं अच्छे से, ठीक है, क्योंकि हमारी बॉडी में ये सारा काम चल रहा होता है। तो उस टाइम हमारी बॉडी को बॉडी की सारी फोर्स जो होती है ना, वो यही सब काम करने में लगा दी जाती है। तभी कहते हैं कि उस टाइम हल्का खाना चाहिए। अगर उस टाइम हम हैवी खाएंगे तो हमारी बॉडी फिर डाइजेशन प्रोसेस में लगी रहेगी। अगर हम हल्का खाएंगे तो जल्दी से डाइजेशन करके बाकी सारी एनर्जी जो है बॉडी की, वो एंटीबॉडीज़ क्रिएट करने में लग जाएगी, एंड देन जल्दी ठीक हो जाएंगे हम, ठीक है जी। ये भी वही एंटीबॉडीज़ है, कैसे उस वायरस को अटैक कर रही हैं, देखो ध्यान से, ये अटैक करी और इसके पूरे स्ट्रक्चर को अभी तहस नहस कर देंगे। इसके जो अंदर ये जो इसके कनेक्टिंग सेल्स, कनेक्टिंग पोर्शंस है ना ऊपर, उन सब के साथ एंटीबॉडीज़ चिपक जाएंगी, जिससे ये किसी से कनेक्शन कर ही नहीं पाएगा। क्योंकि ये जो वायरस होती है ना, नॉर्मली हमारे सेल के अंदर घुस के हमारे सेल को ही अपना रेप्लिका, डुप्लीकेट बनाकर मिलियंस ऑफ सेल्स बना देती है ऐसे, और जिस वजह से हम बीमार हो जाते हैं एंड बहुत सीरियस स्टेज तक पहुंच जाते हैं। ये एंटीबॉडीज़ डिस्ट्रॉय कर रही हैं वायरल सेल को एक,
ठीक है, अटैक कर रही हैं उसके ऊपर। देखो, देन वी आर कमिंग ऑन इम्यूनिटी थ्रू वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन से इम्यूनिटी कैसे बनती है? फर्स्टली वैक्सीनेशन क्या होती है? जो अभी अभी एक वैक्सीन क्रिएट हुई है कोविड की, तो वैक्सीन क्या करती है, उस डिज़ीज़ के, जो डिज़ीज़ मुझे हुई है उस डिज़ीज़ के अकॉर्डिंग मेरी बॉडी में पहले ही एंटीबॉडीज़ क्रिएट कर देगी उस इन्फेक्शन क्रिएटिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को लेकर। मीन्स वैक्सीन्स क्या हैं? ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना हमारी बॉडी में जो आया है, उसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वीकेंड या किल्ड फॉर्म है। सो वैक्सीन्स आर द सस्पेंशंस, मीन्स मेडिसिन, वो एक सब्सटेंस उन्होंने बना दिया, चाहे सॉल्यूशन की फॉर्म में चाहे एक पाउडर फॉर्म में, ठीक है। तो ये किल्ड या वीकेंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। मीन्स इसमें वीक करके कोरोना वायरस का ही कुछ पार्ट डाला हुआ है, ठीक है, कुछ डिराइव्ड पार्ट हैं जो इस वैक्सीन में डाला गया है वीक करके। अब वीक करके जब ये वैक्सीन का पार्ट डाला गया है तो क्या होगा, जब ये हमारी बॉडी में जाएगा हमारे एंटीजन्स इसको पहचान जाएंगे। हमारे एंटीजन्स जब इसको पहचान जाएंगे, हमारी बॉडी के अंदर इसके अगेंस्ट इम्यूनिटी डेवलप होनी शुरू हो जाएगी। मतलब टी सेल्स क्रिएट होने शुरू हो जाएंगे कि वो वायरस किस केमिकल से डिस्ट्रॉय होगा। तो जब अगर वो हमारी बॉडी में वीक फॉर्म में गया है, वीक फॉर्म में सस्पेंड हुआ है, तो हम उसको जल्दी पहचान जाएंगे, वो मल्टीप्लाई नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर वो ज़्यादा अमाउंट में चला जाता है, बिना वैक्सीन के अगर हमें इन्फेक्शन हो जाता है तो वो ज़्यादा अमाउंट में जाएगा, हमारी बॉडी उसको पहचानने इतनी देर में वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस वजह से हम बीमार ज़्यादा हो जाते हैं। और वो लोग जिनकी इम्यूनिटी काफ़ी हाई है तो वो ठीक हो जाते हैं। वो कैसे ठीक हो जाते हैं? क्योंकि दे क्रिएट द एंटीजन्स एंड एंटीबॉडीज़ वेरी फास्टली। फाइन। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, हाउ द वैक्सीन्स आर बीइंग एडमिनिस्टर्ड इन द बॉडी में वैक्सीन्स को एडमिनिस्टर मतलब डालते कैसे हैं, लगाते कैसे हैं। सो 2 मेथड्स आर देयर। इनॉक्यूलेशन का मतलब होता है इंजेक्शन, ठीक है, एंड देन इट इज़ ऑरली मीन्स बाय माउथ में हम ड्रॉप डाल के या सॉल्यूशन पिला कर बच्चों को, ठीक है। तो वैक्सीन की डेफिनेशन एंड वैक्सीन करता क्या है, इट प्रोड्यूसेस इम्यूनिटी टू अ डिजीज़ बाय स्टिमुलेटिंग उसको पहले ही हमारी बॉडी को पहचानवा देता है, रिकॉग्नाइज करवा देता है कि ऐसा वायरस आपकी बॉडी में आए तो आपने क्या करना है, ठीक है जी। सो जैसी कैसे इसको हम ये देखो, अब ये जो अभी कोविड-19 वैक्सीन बनी है, ठीक है, इसको इंजेक्शन से लगा रहे हैं एंड इट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर एवरी वन ऑफ अस टू हैव दैट, ठीक है। सो अब अगर आपके पेरेंट्स आपसे पूछते हैं देन इट्स योर ड्यूटी, आप बताइए कि वैक्सीन काम कैसे करती है और आपको क्यों लगवानी ज़रूरी है, ठीक है। वैक्सीन से कुछ भी नुकसान नहीं होता है, ठीक है, बट इट विल क्रिएट सम इम्यूनिटी, और ऐसी इम्यूनिटी क्रिएट करेगी दैट अगर आपको वायरल इन्फेक्शन कोविड का हुआ तो सीरियस स्टेज तक नहीं पहुंचेगा। फाइन। देखिए, एक मेथड है इसको इंजेक्ट करने का, इनॉक्यूलेशन बोलते हैं इसको। एंड देन जैसे इस बेबी को पोलियो ड्रॉप्स पिलाई जा रही हैं एंड ये हमारी सबसे बड़ी सक्सेस है कि अचीवमेंट है कि हमने इंडिया में से पोलियो बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। पोलियो ड्रॉप्स 5 साल तक के सभी बच्चों को पिला के। फाइन। So then we are coming to the lecture is getting longer. Fine. Then read up to this and read the microorganism in agriculture also. Rhizobium bacteria and leguminous plants are there. ठीक है। सो ये नाइट्रोजन फिक्स करते हैं, नाइट्रोजन फिक्स करके ये प्लांट्स के लिए यूज़फुल हैं। ये लेग्यूम्स हैं, तो ये नाइट्रोजन फिक्स करें एटमॉस्फेयर की। लेग्यूम्स में जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है नाइट्रोजन को पकड़ के सॉइल में डाल देता है नाइट्रेट्स की फॉर्म में, फिर पानी के थ्रू ये प्लांट्स में चला जाता है एंड देन दे फॉर्म द प्रोटीन्स।
ये लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं, ये लेग्यूम्स बोलते हैं, दालें, बीन्स, पीज, ये सारे लेग्यूम्स हैं. एंड देन दिस टॉपिक विल बी डन नेक्स्ट टाइम. पढ़िएगा ज़रूर, अपने आप पढ़ लीजिएगा. थैंक यू वेरी मच.